All right, so I have started the recording. I think we are good to go. So this is the first session of Software Engineering 2, and I'm expecting students from MCS 3rd, BSCS 7th, and BSCS 5th semester. And I'm assuming all of you have at least taken one course of software engineering prior to this course. Okay? So आज का जो lecture है इसमें of course I just wanted to have a brief introduction कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है. आप लोग भी कुछ ऑफ कोर्स कंट्रीब्यूट करेंगे, सो मुझे ज़रा पोजीशन करने में हेल्प होगा कि ऑलरेडी क्या क्या चीज़ें आप कवर कर चुके हैं, और ऑफ कोर्स फिर मैं अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैं अचीव करना चाहता हूँ इस कोर्स के अंदर वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा. ठीक है? Maybe a lot of students already know me, but even if you don't, so my name is Dr. Mohammad Nadeem, and I did my PhD in software engineering, specifically in the area of security, from Mississippi State University of United States. So you can say for the last 15 years, my interest has been centered on software engineering. So I hope at least I'll try to convey some of my knowledge to you guys. So I'll get started with a very basic definition of software engineering. So you might be thinking that we already know all definitions and stuff like that, but it's going to be very brief introduction. So it's not going to be very boring. So if we break this word down into two parts, software and engineering, so I'll just briefly discuss both, but let's start with engineering. So engineering को हम three words में break कर सकते हैं. ठीक है? कोई भी engineering हो, whether it's software engineering, it's civil engineering, mechanical engineering, any engineering. So it's design, development, and maintain. So these are three high-level or major activities in software engineering. So of course, when we talk about civil engineering, we may be talking about designing buildings or bridges, then developing those bridges or buildings, and of course, maintaining those. If you talk about mechanical engineering, once again, designing, developing, and maintaining maybe mechanical parts, machines, cars, and so on. And in terms of software engineering, so we design software applications, we develop software applications, and we maintain them, right? So that is basically the very basic concept or the definition of software engineering. So अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आजकल में क्या इम्पोर्टेंस है? आई मीन मेरे ख्याल में शायद जो अभी कोविड-19 का ईरा चल रहा है, इससे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आप जो इम्पोर्टेंस है शायद उसको रियलाइज करने का कोई और बेहतर टाइम नहीं होगा. If you see, I already mentioned this in my previous talk on FIP, जो कि हमारी first talk थी final year project से related, कि for survival at this point, it is very important कि हमारे पास access हो, हमारे पास applications हो, so that we can interact with our customers. And all those businesses, all those companies which do not have such mechanism, and they have already lost businesses. We may talk about, I mean, shops. We may talk about colleges or schools, and anything that was not prepared to go online and deal their customers, interact with their customers online. They are already out of business. So it means that we need more software, we need more software engineers, we need more applications for all those businesses and all those people, right? So अब देखिए आप लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ऑलरेडी डेवलप कर रहे हैं, मतलब या हमने FIPs में करनी है, ठीक है? सो अब सर हम उनको भी साथ उन एक्टिविटीज़ को भी लिंक करके चलेंगे कि मतलब ये कोर्स आपको कैसे अपने FIP के डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है. So one thing that I always try in my courses is to talk about
state of the art technologies, state of the art, uh, I mean, life cycles. So I'm not going to talk about the history of software engineering, कि waterfall model आया था और ये होता था. Let me mute some of the participants. Okay, so we are rather going to talk about the most advanced software engineering की methodologies क्या हैं, techniques क्या use हो रही हैं, tools क्या use हो रहे हैं. आज गूगल अगर एक डेवलपमेंट करता है या फेसबुक एक डेवलपमेंट कर रहा है किसी एप्लीकेशन की, वो क्या टेक्निक्स यूज करते हैं. ठीक है, तो इस लिहाज से मतलब आपको अंदाजा होना चाहिए कि दिस कोर्स इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. अगर आप ये चीज़ें सीख लेते हैं, यू कैन हैव आई मीन a lot of things that can be added to your CV. And this is very important. Whenever I teach a course, I want to ensure my students that they will be able to add something in your CVs after completion of this course. ठीक है, और I would rather say कि आप बाकी courses भी जब ले रहे हो, do discuss it with your instructors कि इस कोर्स के अंदर हम क्या सीखेंगे, क्या कोई ऐसा टूल सीखेंगे जो हम मतलब अपनी सीवीज के अंदर ऐड कर सकें, हमारी सीवी के अंदर एक वैल्यू ऐड हो सके. तो इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर हम एक से ज़्यादा ऐसे टूल्स इंशाल्लाह सीख रहे होंगे जिनको आप अपनी सीरीज़ के अंदर ऐड कर सकते हैं और अपनी करियर डेवलपमेंट के अंदर एक स्टेप आगे फॉरवर्ड आप मूव हो सकते हैं. ठीक है, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमारे FIP से कैसे ये रिलेटेड होगा, बिकॉज FIP जो है मतलब all of you will have at least one software components, even though you may have a hardware based project, but still हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट को ऑपरेट करने के लिए भी नीड अ सॉफ्टवेयर. यू विल हैव टू डिजाइन एन एप्लीकेशन जो कि उस सॉफ्टवेयर को रन कर रही होगी, उसको बेसिकली ऑपरेट कर रही होगी. ठीक है, सो इट मीन्स हमने सॉफ्टवेयर बेस्ड एक्टिविटी कोई ना कोई ज़रूर करनी है. ऑलराइट, मूविंग ऑन. अब जरा मैं इस चीज़ पे बात करना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस लेट्स सपोज एक डेकेड के अंदर या लास्ट 2 डेकेड्स के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैसे चेंज हुई है. ठीक है, और जब हम बात कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेटेस्ट टेक्निक्स दैट आर इन प्लेस इन कंपनीज लाइक मे बी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक एंड सो ऑन. तो ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने अचीव कर ली हैं और जो कि पहले नहीं थी. द फर्स्ट एंड foremost thing is the most important thing is the automation. ठीक है, let's put it this way. जब कन्वेंशनल एक सॉफ्टवेयर लिखा जाता था, आई मीन डेवलप किया जाता था, तो उसमें ऑफ कोर्स वी हैड यूज्ड टू हैव डिफरेंट स्टेजेस. वी समवन maybe had those requirements and then they used to have like some design artifacts and then they will develop, then there will be someone to test that code. और हर जगह पे एक डिले था. लेट्स सपोज डेवलपर्स और टेस्टर्स की बात करें, so tester will be waiting until the code is available, और जब code available होगा they will just maybe pass on the code or give access to the code, I mean give the access to the testers कि वो उसको access कर सकें, test कर सकें. But it's not the case anymore. We are trying to automate all these steps. ठीक है, हम मतलब ये चाहते ही नहीं है कि टेस्टर्स वेट कर रहे हों और फिर डेवलपर्स बाद में उनका वेट कर रहे हों कि ओके अब ये टेस्टिंग करेंगे, डिफरेंट तरीके से रन करके देखेंगे, इसको इनपुट्स पास करेंगे एंड सो ऑन. वी हैव डिवाइज्ड वेज टू कंप्लीटली ऑटोमेट द टेस्टिंग. अब देखें टेस्टिंग क्या है. अगर आप सबसे एक बेसिक यूनिट की बात करें जो एक सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, उसको हम लाइक वी हैव मॉड्यूल्स. एक मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल फिर फंक्शंस होते हैं. ठीक है, इफ यू हैव डेवलप्ड समथिंग इन जावा, you may think about class files and then there are several methods in that class file. If we have developed software in for instance C language, we have a program and one C program may have multiple functions. Of course we have the main function, then we may have other functions. If you have developed in .NET, we have the similar concept. We may have a C#
or a VB.NET class, and then there are methods, okay, within that class. So we call that method or a function the unit. उसको हम एक unit कहते हैं, ठीक है. अब हम क्या करते हैं कि हमें हर मेथड के इनपुट्स का पता होता है कि इसे कितने इनपुट चाहिए, इनपुट पैरामीटर्स क्या क्या हैं इसके, और ये रिटर्न क्या करता है, ठीक है. अब लेट्स सपोज एक मेथड या एक फंक्शन हो सकता है जो कि किसी यूजर को लॉग इन करने की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है. अब लॉग इन करने के लिए वी नीड यूजर नेम एंड देन वी नीड पासवर्ड, एंड द रिटर्न the result is either a success flag or a false flag, means a failure flag. तो हमें एक boolean की फॉर्म में 0 या 1 की फॉर्म में हमें रिजल्ट मिल सकता है. We can automate this thing. किस तरह से हम ऑटोमेट कर सकते हैं कि हम डिफरेंट टेस्ट केसेस बजाय इसके कि एक फिजिकल एक ह्यूमन परफॉर्म करे जिसको हम टेस्टर कहते थे पास्ट में, we can write code to test our functions or methods. Specifically अगर login के function की बात की जाए, we can test it in different ways. For instance, by providing a valid username and a valid password. Secondly, providing a invalid username or invalid password. Number three, we don't input the username and password at all. Invalid input से try करके देखते हैं कि username password आपने दिया ही नहीं और आपने login पे click कर दिया तो क्या होगा. Number 4 scenario क्या हो सकता है, with output that is too lengthy, like username was supposed to be maybe 10 characters long, or the password was supposed to be 8 or 10 characters long, and we are providing maybe 50 characters. And what's going to happen? How the software is going to behave, whether it's going to fail, whether it's going to crash, or whether it's going to maybe malfunction. So we can define all these test cases, and then we can just click on a button, and all these inputs are provided to the function, and their outputs are recorded and matched with an expected output. अब देखें टेस्टिंग के अंदर क्या होता है. We have inputs, we have an output that is called the actual output, and we have another output that is called the expected output. If the expected output is same as actual output is same as expected output, then it means everything is fine, and we can say the testing is successful, right? But if that is not the case, it means there is something wrong, okay? And that will flag something for developers that your code didn't work, right? So that is our objective in software in testing, that we can automate the entire process. We can write test cases which will run automatically, which will give us the results automatically. And we don't have to even wait for the code, that once the code is available, we will start writing the test cases. Rather, हम क्या कर सकते हैं, जो ही हमारे पास डिजाइन एक दफा अवेलेबल होता है कि we know कि there is a function called login. It is going to take 2 inputs, username and password, and it's going to produce a binary output that is true or false, whether the user is successfully logged in or not. We can start writing the test cases ahead of time. अभी हो सकता है डेवलपर ने उसका कोड लिखना शुरू ही ना किया हो, लेकिन टेस्टर ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया कि वो एक टेस्ट केस लिखेगा जो कि इस फंक्शन को कॉल करके इसको 2 इनपुट पैरामीटर पास करेगा और देखेगा आउटपुट क्या आ रहा है, और सिर्फ वैलिड इनपुट से चेक नहीं करना, बल्कि इनवैलिड इनपुट से चेक करना है, वेरी लेंथी और वेरी शॉर्ट इनपुट से चेक करना है, एंड सो ऑन. एंड वी हैव टू सी, हो सकता है हम ये भी चेक करना चाहें क्या मल्टीपल लॉगिन अटेम्प्ट्स के बाद वो अकाउंट ब्लॉक हुआ है कि नहीं हुआ, एंड वी कैन ऑटोमेट द entire thing, right? So similarly, let's talk about, now we know that this entire thing can be automated. मतलब ये पूरी टेस्टिंग जो है ऑटोमेटेड हो सकती है, and it can be triggered or initiated by just with the help of just one button. ठीक है, आप एक बटन को प्रेस करेंगे और पूरी की पूरी आपकी एप्लीकेशन की टेस्टिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. Now let's move on and talk about maybe another phase, phase of the software engineering, that is called deployment.
सो व्हाट्स डिप्लॉयमेंट? डिप्लॉयमेंट में हम बेसिकली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को एक इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करते हैं, लेके जाते हैं, और वहाँ पे वो जहाँ पे एक्चुअल उसमें फंक्शन परफॉर्म करना होता है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। All right, so we were talking about the deployment environment. So deployment environment basically is the execution environment of the application, where the application actually resides and it functions, it's communicating to its users, to the database, and so on. Now, this task was done once again manually, and there were like people who would maybe uh, copy or take the application from the development lab or developer's laptop to the actual environment. And the application sometimes may not work properly, and then they will figure out why it's not working. And this entire thing was manual, right? Now what you can do is you can define a process which automatically takes your compiled or built application, and then it can transfer it to the actual environment where it has to actually perform its function. And once again, this thing can be fully automated. ठीक है? So आज ये हम दो चीज़ों की automation की हम बात कर चुके हैं. Now let me introduce something called CI/CD, continuous integration and continuous development. ठीक है? CI means continuous integration and CD means continuous development. और एक और हम वर्ड यूज करेंगे CI/CD पाइपलाइन का. पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. एक सिंपल सी एग्जांपल हम लेते हैं. यू कैन सी जैसे वर्क बेंचेस बने होते हैं, लाइक एक ऐसा टास्क होता है जो कि मल्टीपल उसके फेजेस हैं, and every person is performing their own job and passing the output to the next person, and then they are maybe doing something else to that process and so on. It can be an ordering system where we have like multiple people. The first person takes an order, second person maybe packs our food into boxes, the third person maybe calculates the total, the fourth person puts everything into a bag, the fifth person maybe takes money and handovers our food to us. So this would be one example of the pipeline. और इस pipeline के अंदर कोई एक चीज भी अगर फेल होगी तो पूरी की पूरी चीज रुक जाएगी. सो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन के अंदर या कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है पाइपलाइन का, कि जैसे आप समझ लें कि एक कोई हमारा एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट मतलब या कोई एक सर्वर रिस्पॉन्सिबल होगा टेस्टिंग के लिए, एक सर्वर रिस्पॉन्सिबल होगा डिप्लॉयमेंट के लिए, और हम इन सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे होंगे. ठीक है, एक हमारा सर्वर होगा जहाँ पे कंपाइलेशन हम कर रहे होंगे. ठीक है, we may think about like source code coming from different developers to one repository, and then we may think about like thousands or even millions of lines of code and being compiled and built into a product. So this whole thing of course is one part or one station of that pipeline. Just as an example दी. So once we have this pipeline working, the things become very like fast and very smooth, right? So developers code लिख रहे हैं, they are submitting their code to a repository. वहाँ पे जो ही कोड सबमिट होता है तो एक ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस चल जाता है जो कि कंपाइलेशन का प्रोसेस है. आफ्टर द कंपाइलेशन वी हैव बिल्ड प्रोसेस. अब बिल्ड और कंपाइलेशन डिफरेंट है. ठीक है, बिल्ड का मतलब और कंपाइलेशन का मतलब है लेट्स सपोज एक मॉड्यूल को कंपाइल करना. बिल्ड का मतलब है देयर कैन बी 100 डिफरेंट मॉड्यूल्स and they of course have to work together as one unit or like one application. So sometimes हो सकता है compilation आपकी ठीक हो चुकी हो but build process fail हो जाए किसी भी वजह से. ठीक है, so build means overall एक application के let's suppose 100 components को एक साथ एक जगह पे लेके आना और देखना कि whether they function properly as one application or not, right? और compilation का मतलब क्या है? once again compiling one component out of those 100 components. ठीक है, compilation is a very simple task.
it does not relate or incorporate or like um, sort of communicate to all 100 modules. So we compile one module, then another module, then the third module, and so on. But in terms of build process, build is the entire application where we put everything together. There can be like some configuration files and so on. So we put everything together to see whether they work together as a single application or not. So अब पहले stage मैंने आपको क्या बताई, developers हैं, they are writing code, they are submitting code to a repository. Then we have another process called compilation. Then we have a process called build. Then we may have a process called testing process. Then we may have a process called maybe deployment process. Okay? And this is if everything goes fine, if everything goes ideal, there is no error detected during testing. But what if something goes wrong in testing? फिर ऐसा नहीं है कि हम मैनुअली कोई फोन उठाएंगे और बोलेंगे ओके डेवलपर ए योर कोड इज नॉट वर्किंग, रादर वी हैव ऑटोमेटेड प्रोसेसेस फॉर दैट एज वेल. ठीक है, जो कि ऑटोमेटिकली ट्रिगर कर देंगे कि ये कोड किसने लिखा है, उसको ईमेल चली जाए, उसको पता चल जाए कि कौन सी लाइन पे क्या एरर आया है, सो दैट they can review their code and they can submit their code again, right? So you can now have an idea कि CI/CD की पाइपलाइन मतलब क्या होती है, और इसको हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से भी, एक ऑर्डरिंग सिस्टम से हमने कंपेयर करके देखा, जहाँ पे डिफरेंट स्टेशंस हैं और हर स्टेशन पे एक बंदा खड़ा हुआ है और वो अपना काम कर रहा है. इसी तरीके से पाइपलाइन के अंदर आप समझ लें, जो हम कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन की पाइपलाइन की बात करें, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होता है. ठीक है, ऑलराइट. सो let me see if I have something to share with you guys. Okay, before I move forward, so do we have any questions at all? अगर कोई क्वेश्चन अभी तक हैं, अभी तक देखें हमने क्या क्या कवर किया. वी टॉक्ड अबाउट लाइक बेसिक्स ऑफ कोर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, वी कंपेयर्ड इट विद डिफरेंट आई मीन इंजीनियरिंग्स. सिविल इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं एंड सो ऑन, एंड देन वी डिस्कस कि हाउ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज हैव इवॉल्व्ड और चेंज्ड ओवर द टाइम. ठीक है, and then then I gave you some examples like how the development is so fast nowadays, right? Okay, let me talk a bit more about the fast development, like efficient development. कुछ इसकी example मैं आपको real world देता हूँ जो आपने खुद observe की होंगी. So how many of you have observed that whenever we plug in our phone for charging and we see 5 applications have been updated, sometimes we see like 10 applications have been updated. So I think सबने ये चीज़ observe की होगी. ठीक है, I don't think कि कोई भी ऐसा बंदा होगा जो स्मार्टफोन का यूजर और उसने ये ना देखा हो. Now think about it, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही होती हैं? मतलब क्या like Facebook की एक ऐप है, उसमें कोई अपडेट करता है, और अगर सोचें ये सारे प्रोसेस मैनुअल होते हैं, पहले रिक्वायरमेंट कोई बंदा इकट्ठा करता, फिर जो है लाइक वो डेवलपर्स को दी जाती हैं रिक्वायरमेंट्स, फिर डेवलपर उनके अंदर आई मीन अपने सोर्स कोड के अंदर चेंज करते, फिर वो टेस्टिंग के फेज में चला जाता, फिर वहाँ पे एक डिले आता, मतलब आपने टेस्टर्स को दे दिया और एक दिन के बाद उन्होंने रिप्लाई किया ओके वी आर गोइंग टू टेस्ट इट इन लाइक नेक्स्ट 2 days एंड वी विल गेट बैक टू यू. 2 दिन के बाद जो है ना वो टेस्ट करके उनको वापस करते, फिर हम आगे मतलब जाते, उसको बिल्ड करते, या उसको हम डिप्लॉय करते, और डिप्लॉय करने के लिए ऐप स्टोर के अंदर भी मैनुअली अपडेट कर रहा होता. फेसबुक का कोई एम्प्लॉय लॉग इन होके ओके ये एंड्रॉयड का ऐप स्टोर है, इसके अंदर हमें अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करना है. बट दैट इज़ नॉट द केस. मतलब आप अगर इतना डिलेज आते तो हमें शायद एक एप्लीकेशन की अपडेट्स हो सकता है हमें बहुत बहुत अरसे के बाद मिल रही होती, बट हम इतना रैपिड अपडेट्स हमें कैसे मिल रहे होते हैं? दैट इज़ वंस अगेन कि जो एप्लीकेशंस बेसिकली डेवलप हो रही होती हैं वो उनमें इतना लेवल ऑफ ऑटोमेशन अचीव कर लिया गया है कि इवन स्टार्टिंग फ्रॉम राइटिंग कोड टू डिप्लॉइंग
deployment of your application into a an app store like iPhone का store हो या बेशक Android का app store हो, Play Store, उसके अंदर directly मतलब with the help of automated tools आप ये सारे task perform कर सकते हैं. So that is basically something that is providing us or giving us so much power and so much efficiency, right? And our entire course is about that. कि वो हम कैसे अचीव करते हैं, CI/CD की पाइपलाइन क्या होती है, टूल्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे हम उनको डिप्लॉय कर सकते हैं एंड सो ऑन. ठीक है. So okay, so I'll take a break in a way that I'm not going to talk anymore, but I'll give a chance to some of the students कि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 के अंदर मतलब क्या ऐसा तो नहीं है सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं पहले से, या मे बी अगर नहीं पढ़ी तो आपने कौन कौन सी चीज़ों पे काम किया, क्या टूल्स पढ़े, मैथडोलॉजीज पढ़ी, क्या किया. सो इट्स ओपन टू ऑल ऑफ यू जो भी इनपुट देना चाहें. एंड ऑफ कोर्स you have to be very interactive in this course. आप लोग जितना फीडबैक देंगे उतना हम इस कोर्स को फाइन ट्यून कर सकेंगे. ठीक है. So please get started. कोई भी start कर सकता है, कोई भी अपना input दे सकता है. So my question once again is अपने previous course के बारे में आप बताएंगे जी please. सर उसमें जो है हमने मतलब कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं पढ़ा, मतलब ज़्यादातर जो हमारे पास थे वो मॉडल्स थे, जो मोस्टली जो हमें लग रहा है कि हमारा कोर्स वगैरह था ना वो मॉडल्स पे बेस्ड करता था, वाटरफॉल मॉडल और अजाइल मॉडल और इस तरीके से ये चीज़ें थी. Okay, so response मेरे ख्याल में बाकी सबने भी सुना होगा. Let me repeat the response. So फरवा आपका नाम है मेरे ख्याल में. Yes sir. Thank you. So Farwa said कि you guys discussed different waterfall models and different other models that are used in software development. Fine, perfectly fine. So my next question would be to all of you, कोई और भी respond कर सकता है कि आपका क्या कोई tools वगैरह पे आप काम कर सके, कोई आपको chance मिला, or it was like No, sir. entirely. No, sir. No, sir. No, sir. Sir, it was totally theoretical subject. हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी उसमें. Okay. अच्छा चलें ठीक है, कोई बात नहीं. सो अच्छा मुझे नेक्स्ट ये बताएं कि एजाइल का आपने बात की, एजाइल के बारे में थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, एजाइल क्या होता है, और वाटरफॉल और एजाइल मॉडल्स के दरमियान अगर मैं कहूँ कि लाइक फिंगर टिप्स में मुझे एक दो डिफरेंसेस अगर आपको पता हो किसी को भी तो प्लीज़ बताएं जरा उनको. सर वाटरफॉल मॉडल में हमारे पास ये था कि जब हम लोग उसके थ्रू कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे तो उसका हर स्टेजेस जो हम लोग कंप्लीट करते थे हम लोग वापस उस पे नहीं जा सकते थे. अगर हमें कोई अपडेशन करनी होती थी तो हमें ओवरऑल बिल्कुल फर्स्ट स्टेप पे जाना होता था. पर जब हम लोग एजाइल मॉडल की बात करते थे उसमें ऐसा हमारे पास नहीं था. हम लोग टाइम टू टाइम अगर हमने कुछ अपडेट करना हो या मॉडिफिकेशन उसमें करनी हो तो हम उसी वक्त करके और बाकी अपनी सारी जो कोडिंग है वो इसी तरह कंटिन्यू कर सकते थे. Okay, thank you. Very good. So let me put it in some other words. For waterfall model, you must have all the requirements listed before you can move to the next stage. Okay? And before you begin developing, you must have the entire design completed, right? So we don't have a way to communicate with the customer again and get more requirements. But this is the problem, like waterfall kyun kaam nahi karta. The problem is, can you list all the requirements up front? Even एक ऐसा project जिसके बारे में आपने पहले से decide किया हो कि you are going to develop like XYZ project, no one can guarantee that they will be able to come up with all the requirements in a day or a week or 10 days or whatever. So let's suppose आप जो अपना project develop कर रहे हैं,
I always like have this activity in class. I give a chance to students to write down कि वो जो उनके प्रोजेक्ट जो माइंड में है उनके, मैं उनको कहता हूँ कि ओके आप सारी एक लिस्ट बनाएं कि इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी. So last time when I did this activity, so the students came up with an idea of having a software application for their canteen at SPK University, and they wanted to automate the entire functions of the cafeteria, that you should be able to order online, you should be um, just able to go and pick up your food once it's ready, you should be notified about discounts that are being offered and so on. And I gave them time, like think again, and let me know when you feel that all the requirements have been taken care of. So trust me, then when they said, okay, we don't think anything is missing, even then the core functionalities were missing. For instance, they never talked about to sign up, that a customer will need to sign up for this application and then will eventually be able to like place an order, right? अब देखें, मतलब ये चीज़ें हमारी इंट्यूशन में होती हैं, हमारे थॉट प्रोसेस में होती हैं, एंड हम वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट भी करें. एंड सेम इज ट्रू विद आवर कस्टमर्स, मतलब वो भी ह्यूमंस है हमारी तरह, मतलब दे आर नॉट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट देम कि वो सारा का सारा काम जो है ना हमें, मतलब just a second, let me just. Okay, sorry for that. So all right. So ये सॉरी नोटिफिकेशन के कुछ वो आ रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे रिकॉर्डिंग में. एनीवेज, so I was talking about that customers cannot list all their requirements up front. They need time. They need to see what they did in the previous meeting, and they can come up with more ideas. They can think about more features that they want in their app. So that is why we went to iterative models or agile models. और अब देखें इन एजाइल मॉडल्स के अंदर ये बार बार कस्टमर से इंटरेक्शन का टाइम कहाँ से आता है, और क्या ये ऐसा नहीं होगा कि मतलब वाटरफॉल मॉडल से ज़्यादा टाइम ले लेंगे अगर ओवरऑल आप टाइम को देखेंगे, बिकॉज यू आर गेटिंग सम रिक्वायरमेंट in the waterfall model, you get all the requirements at once, and in agile you get some requirements and then you meet with the customer again, you get more requirements, you develop those features, test those features, and demonstrate those features to the customer and get more feedback and more requirements, and this iterative process goes on. Now the thing is that whether it's going to take more time or less time, okay? So it's never like recommended कि आप कोई ऐसी methodology लेके आ जाएं जो पहले की methodology से inefficient हो, ठीक है? अब देखिए पहले जितना टाइम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर फोकस किया जाता था, अब वो सारा टाइम कट डाउन करके कस्टमर कम्युनिकेशन के ऊपर लगाया जा रहा है, बिकॉज दे रियलाइज कि कस्टमर कम्युनिकेशन आपकी जितनी अच्छी होगी, आपको उतना ज्यादा फीचर्स पता होंगे कि आपको कस्टमर को चाहिए क्या, ठीक है? सो दिस इज the main benefit or the main point of having these methodologies, these agile methodologies, that they focus on customer communication. ठीक है? So चलें, moving on, let's see if I want to share something with you guys. Just give me a second and see. Okay.
All right, so let's get started and let me share slides with you guys. और मैं आपको मतलब चाह रहा हूँ कि आपने किस तरीके से अपने FIP के अंदर भी आपको बेसिकली हेल्प करेगा. सो आई एम टॉकिंग गोइंग टू टॉक अबाउट agile methodology called Scrum. Okay, so let me वीडियो में ऑफ कर देता हूँ so that आपको स्क्रीन ज़रा क्लियरली नज़र आए. All right, so all of you can see the screen. तो Scrum जो है एक agile methodology है, ज़रा उस पर हम बात करेंगे. और has anyone taken I mean this session from me before this I mean class or not? कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं आप जो पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट मेरे पास पढ़ चुके हो? मेरे ख्याल में नहीं है. ओके ओके ठीक है. सो स्क्रम जो है इसमें ऑब्जेक्टिव हमारे क्या हैं? सो वी हैव टू डिस्कस के स्क्रम काम कैसे करता है. एंड वंस अगेन हैंड्स ऑन होगा, मतलब आपको पता चल रहा होगा कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं. और स्क्रम टीम मेंबर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट रोल्स, create product release and sprint backlogs based on user stories, estimated release date on burn down charts and कुछ automated tools की हम बात करेंगे. So अच्छा, ये मैं इस लेक्चर को मैंने क्यों सिलेक्ट किया? So इसकी रीज़न है, मतलब बिकॉज आप अपने प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं. So I want all of you to start working on your projects by using this methodology. ठीक है. सो हम ज़रा बात करेंगे यूज़र स्टोरी क्या होती है, बैकलॉग क्या होता है, रिलीज बैकलॉग क्या होता है, स्प्रिंट क्या होता है, स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है, एंड सो ऑन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यूज़र स्टोरी क्या होती है? अब देखें, यूज़र स्टोरी इस तरह से है कि लेट्स सपोज अगर आप किसी अपने कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कस्टमर आपको ये बताएगा कि एज अ मैनेजर आई वांट दिस फीचर सो दैट मैं उससे ये काम ले सकूं या मुझे ये बेनिफिट उसे हो. ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, हमने मतलब हम किसी को अगर ये जाके बोले ना एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के ओके आप हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दें, दिस विल बी अ वेरी लेम क्वेश्चन. मतलब मैं बिल्कुल कभी भी आपको नहीं बताऊंगा, कभी भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपने कस्टमर से जाके इस तरह से पूछें कि ओके आप अपने रिक्वायरमेंट्स हमें बता दें. बिकॉज आपको बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज पता होंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके कस्टमर को, लेट्स सपोज व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम a person who is running a cafeteria, or maybe he is the owner of the cafeteria, maybe he has like 10 different cafeterias, but does he have any knowledge about software engineering? Has he created a list of requirements before? No, of course not. And this would be a senseless question कि मतलब आप उन्हें टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर बात करना स्टार्ट कर दें उनसे. सो आपने उन्हें इंगेज करना होता है कि वो आपको खुद बताना शुरू कर दें कि मुझे ये फीचर चाहिए सो दैट मैं उसे ये बेनिफिट हासिल कर सकूं. और वी कॉल दीज यूज़र स्टोरीज. सो अब कस्टमर मतलब जो होंगे, यूज़र जो होंगे, उसके डिफरेंट यूज़र्स हो सकते हैं, उसके यूज़र स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया के. वो आपको डिफरेंट चीज़ें बताएंगे कि एज अ लेट्स सपोज as a customer, I want to see the deals that are available for a specific day. I want to see discounts. I want to get notified that my food is ready so that I don't waste any time and just go and grab my food. So अब देखिए, मैं सब में तकरीबन सेम एक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ कि एज अ कस्टमर या एज अ रोल. नेक्स्ट चीज़ क्या लिखी हुई है? आई वॉन्ट अ स्पेसिफिक फीचर, मतलब फीचर की बात कर रहा हूँ. सो दैट आगे उसका बेनिफिट मुझे नज़र आ रहा है कि सो दैट मुझे उस फीचर से क्या फ़ायदा होगा.
तो इनको हम यूजर स्टोरीज कहते हैं। तो आपने क्या करना है, जितने लोग अभी तक FYPs अपने सेलेक्ट कर चुके हैं या जो लोगों ने लेट्स सपोज फ्यूचर में करने हैं, सो यू हैव टू डिजाइन सम यूजर स्टोरीज। और वो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होगी, वो सिर्फ एक एक सेंटेंस होगा कि एज अ कस्टमर आई वांट टू गेट नोटिफाइड अबाउट न्यू डील्स so that I can save money, for instance. As a customer, सर yes please. सर गर्ल्स बोल रहे कि स्क्रीन शो नहीं हो रही। Okay, let me see. किसी को नहीं हो रही है, कुछ लोगों को हो रही है। सर जिनका कनेक्शन प्रॉब्लम है उनका नहीं show Okay, होगा, okay, हमें let me share again. Let me share again. मैं दोबारा कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। Thanks for bringing it up. Okay, so let's see. हम थोड़ा सा मजीद भी वेट कर लेते हैं and let me send these slides to you guys maybe. Let's see if it works. ठीक है, जिनके पास नहीं हो रही मैं उनको स्लाइड्स वैसे ही सेंड कर रहा हूँ सो दैट आप अपने कंप्यूटर्स पे इनको रन कर लें स्लाइड्स को, और मैं स्लाइड नंबर आपको बताता जाऊँगा। सो प्लीज़ होल्ड, मैं सिर्फ स्लाइड्स सेंड कर दूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो द टाइटल ऑफ द स्लाइड इज स्क्रम इन क्लास एक्टिविटी, ठीक है। ये मैंने सेंड कर दी आपको एंड दे आर अपलोडिंग। सो वी वर एट स्लाइड नंबर 4। मैं दोबारा से इसको शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो आप अपने एंड पे ओपन कर सकते हैं। आई विल मेंशन स्लाइड नंबर जो ही हम आगे प्रोग्रेस करते हैं, ठीक है। मैं आपको स्लाइड नंबर बताता जाऊँगा। ऑलराइट, सो लेट मी जस्ट कंफर्म कि वेदर आप लोग बल्कि कंफर्म कर दें फाइल आपको रिसीव हो गई है। सर कहाँ पे सेंड किए? चैट के Yes, अंदर। sir. चैट में? जी जी। Okay, so we are at slide number 4 by the way. So we were talking about user stories. User stories के अंदर हम इस तरह से बेसिकली हम लिखते हैं कि एज अ रोल कोई भी हो सकता है, एज अ कस्टमर, एज अ मैनेजर, एज an operator, as any role I want. Then we talk about a feature. So for instance, if I was to talk about a role that is customer, then I may want to talk about a feature that is like sign up. चांदी उठा के इसके ऊपर भी फिरना है। अच्छा, आप अपने प्लीज माइक्स को म्यूट कर दें। ये नहीं उठाओ, बस इसके फिर चांदी के ऊपर फेर दी। हाँ, सी
माइक को म्यूट कर देंगे प्लीज आप? थैंक यू। Okay, so coming back, so we were talking about the user stories. So we have to like talk about different roles. For instance, as a customer, I want to sign up so that I can get notified about new deals. So that is one of the user stories for a system that is a university cafeteria app, right? So आप इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, as an owner I want to see the daily sales so that I can get insight to my business, right? So अब रोल क्या होगा? As an owner, फीचर क्या होगा? To see or view daily sales, और बेनिफिट क्या होगा? कि आपको बिजनेस के इनसाइट्स मिल रहे हो, ठीक है? So as an owner, let's suppose एक और एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. I want to see the items that are running short so that I can reorder them, right? So इस तरीके से आपने यूजर स्टोरीज लिखनी होती हैं. और यूजर स्टोरीज बेसिकली क्या है? रिक्वायरमेंट का ही एक और नाम है, समझ लें, ठीक है? ओके, अब देखिए प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है कि लेट्स सपोज व्हेन वी हैव अ लिस्ट ऑफ यूजर स्टोरीज, हमारे पास बहुत सारी यूजर स्टोरीज जमा हो जाती हैं, तो उनको हम बैकलॉग कहते हैं. बैकलॉग वैसे बेसिकली हर उस चीज जो कि आपने लाइक कंप्लीट करनी हो, पेंडिंग में हो, उसको आप बैकलॉग कह सकते हैं. तो प्रोडक्ट बैकलॉग का मतलब क्या होगा कि बहुत सारी यूजर स्टोरीज जो कि एक पूरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, उसको हम प्रोडक्ट बैकलॉग कहते हैं कि प्रोडक्ट के सारे फीचर्स जो कि हमने अभी तक डेवलप करने हैं. Then we have something called a release backlog. Release backlog का मतलब ये होता है कि you select a subset of features. For instance, मेरे ख्याल में सर जी प्लीज. सर ये प्रोडक्ट बैकलॉग एक बार फिर से बता दें. Okay. So okay, the question is कि product backlog क्या होता है? So product backlog is all those features which basically make up the entire product. ठीक है, मतलब ऐसी यूजर स्टोरीज जो कि कस्टमर की हैं, ओनर की हैं, कोई वहाँ पे जो शेफ काम करते हैं, लेट्स सपोज हो सकता है उनके लिए भी कोई फीचर्स हों, उन सब की यूजर स्टोरीज को अगर हम कंबाइन करें तो हमें वो जो एक बैकलॉग मिलेगा उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट बैकलॉग, ठीक है? फिर हम कहते हैं रिलीज बैकलॉग क्या होता है? रिलीज बैकलॉग का मतलब ये होता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि पहले रिलीज में हम कौन कौन से फीचर्स को बेसिकली इम्प्लीमेंट करेंगे या डेवलप करेंगे, तो उसको हम रिलीज बैकलॉग कहते हैं. अब देखें, हो सकता है कि साइन अप करना जो है हमारे पहले रिलीज में ऑफ कोर्स लाजमी होगा, और हो सकता है अकाउंट डिलीट करना, पासवर्ड रीसेट करना, या इस टाइप के अकाउंट ब्लॉक हो जाना, मतलब मे बी इसको हम सेकंड प्रायोरिटी में डाल देंगे. ओके, वी विल सी इट इन सम अदर रिलीज लेटर ऑन. इस वक्त हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको फोकस कर रहे हैं, ठीक है? और ये चीज़ें मतलब आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, मतलब इट्स नॉट समथिंग कि इसके लिए कोई स्टैंडर्ड्स हैं या कोई गाइडलाइंस हैं. रादर यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ कि आपके प्रोडक्ट के पहले फेज के अंदर, पहले रिलीज के अंदर, पहले वर्जन के अंदर आप क्या क्या चीज़ें देखना चाहते हैं. तो आप एक सबसेट सेलेक्ट करते हैं यूजर स्टोरीज का, ठीक है, और उनको एक जगह पे डाल देते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड अ रिलीज बैकलॉग. मतलब जो पहला रिलीज क्रिएट होगा आपकी ऐप का, उसके अंदर जो फीचर्स सेलेक्ट आप करते हैं उनको रिलीज बैकलॉग कहते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर एक चीज़ होती है एफर्ट एस्टिमेशन. एफर्ट एस्टिमेशन के ऊपर हम फ्यूचर में भी बात करेंगे, बट एफर्ट एस्टिमेशन ये है कि you have to decide how many days are going to be taken for each feature to be created. For instance, if I talk about creating, let's suppose, a login screen and a login functionality, how much time it is going to take. So once again, it's you guys who have to decide whether it's going to take 2 days, 4 hours, 8 hours, 1 hour, whatever. आप लोगों ने डिसाइड करना होता है, ठीक है? और इसके लिए भी टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं कैसे हम एक कंसेंसस पे आ सकते हैं, बट इट्स लाइक सॉर्ट ऑफ वी हैव ऑटोमेटेड टूल्स फॉर दिस एज वेल. और हम कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करते हैं. लेट्स सपोज इफ समवन सेज के 3 days एंड अनदर पर्सन सेज 8 hours, सो हम इन दोनों से पूछेंगे व्हाई 3 days, आपको क्यों लगता है कि 3 days लगेंगे?
और फिर जो एक्सट्रीम होते हैं, मतलब मिनिमम जो टाइम बता रहा होता है जो भी डेवलपर, और जो मैक्सिमम टाइम बता रहा होता है, उन दोनों को फिर हम रीजंस पूछते हैं. मे बी दे हैव गुड रीजंस, मे बी दे हैव experiences from prior projects. So then we try to bring them to a single point. मतलब अब देखिए ये जो डिफरेंट यूजर स्टोरीज हमने सेलेक्ट की हैं फर्स्ट रिलीज के लिए, उससे रिलेटेड जो है एक हम एफर्ट एस्टिमेशन हमने की हुई है कि 2 आवर्स 8 आवर्स, ये रैंडम, मतलब आप समझ ले मैंने वैल्यूज ली हुई हैं, ये ऑफ कोर्स वेरी कर सकती हैं. ठीक है. अच्छा, फिर स्प्रिंट बैकलॉग को भी हम, मतलब सॉरी, स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है कि हम जो रिलीज बैकलॉग को भी फर्दर डिवाइड कर लेते हैं कि हम पहले स्टेज में क्या बनाएंगे, सेकंड स्टेज में क्या बनाएंगे, थर्ड स्टेज में क्या बनाएंगे, उनको हम स्प्रिंट्स कहते हैं. सो प्रोडक्ट बैकलॉग से नीचे आप समझ लें एक स्टेज है रिलीज बैकलॉग से नीचे एक स्टेज है स्प्रिंट. ठीक है. स्प्रिंट के अंदर हम बेसिकली वी टेक फ्यू यूजर स्टोरीज एंड वी डेवलप देम. और ऐसा भी हो सकता है आपकी मल्टीपल टीम्स हो सकती हैं जो कि डिफरेंट यूजर स्टोरीज के ऊपर काम कर रही हैं, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है. अब देखिए हमारे पास ये बर्न डाउन चार्ट है. वैसे इस पे मैं लेट्स सी मैं लेटर ऑन इस पे ज़रा बात करूंगा आप लोगों से. इसको मैं अभी स्किप कर देता हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू पुट टू मच सॉर्ट ऑफ प्रेशर ऑन यू गाइस. मैं थोड़ा सा यहाँ पे टूल्स की बात करूंगा अभी आप लोगों से, जो मैं बल्कि आपको सजेस्ट भी करूंगा कि आप लोग खुद इस पे थोड़ा सर्चिंग करें. और मैं थोड़ा सा आपसे शेयर भी करना चाहूँगा. जस्ट गिव मी अ सेकेंड टू फाइंड आउट व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू गाइस. ओके, मैं अभी एक और स्क्रीन आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ. दैट इज़ बेसिकली अ वेब पेज, और उससे मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ एक और टूल का जो यहाँ पे अभी मेंशन नहीं है. यहाँ पे 2 टूल्स मेंशन है, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ थर्ड टूल दैट इज़ कॉल्ड Trello. तो इट्स वेबसाइट इज़ ऑफ कोर्स trello.com. ये नज़र आ रहा है आप लोगों को? यस सर. ओके, Yes, थैंक यू. sir. सर ठीक है, थैंक यू. सो अगर नहीं भी नज़र आ रहा, मैं इसका बेसिकली जो URL है मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा चैट के अंदर, सो यू वुड फिगर आउट इजीली इंशाल्लाह. अब देखिए ये टूल है Trello, ये आपको ये सारी चीज़ें ऑटोमेट करने में हेल्प करता है. जो हमने बात की ना यूज़र स्टोरीज, और डिफरेंट लोग इस पे जो है ना अपना अकाउंट बना के एक टीम फॉर्म कर सकते हैं. और वी हैव समथिंग कॉल्ड अ कार्ड का मतलब ये होता है जैसे यहाँ पे हम एक स्टिकी नोट की तरह की आपको चीज़ नज़र आ रही थी जब हम मतलब Trello पे बात सॉरी उस पे यूज़र स्टोरीज पे बात कर रहे थे. सो इट्स द सेम सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट. और लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड आउट यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर दिस. मैं लॉग इन करके आपको दिखाना चाहता हूँ बेसिकली. जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, लेट मी फिगर आउट के यूजर नेम पासवर्ड क्या है मेरा. ऑलराइट, सो ये लॉगिन जब तक हो रहा है, लेट मी टॉक अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस.
Okay, continue. I don't know what's happening. So why did it log me out? It's still loading. Please hang on. ठीक है, थोड़ा सा वेट करें. अगर देखते हैं अगर नहीं काम करता then we will leave it. ओके So let's see. It's working. Okay, it's still loading. I don't see a problem. It's still loading. Please hang on. सर आपने जो स्लाइड्स भेजी हैं ये जो इसी में जो चैट का ऑप्शन आता है उसी में हमें शो होंगी ना? जी अभी तो I mean you cannot download from there. डाउनलोड नहीं हो रही आपसे? यस सर. नहीं सर, शो मतलब नहीं आई, मेरी शो ही नहीं हो रही सर रिसीव ही नहीं हुआ। चैट में मेरे पास. यस सर पता नहीं मुझे सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना आ रहा या फिर ओके कोई ओके, और लेट मी इशू सी. है. लेट मी सी, देख लेते हैं. मेरा हो गया है, शायद फरवा आपका मसला होगा। जी जी देख लेते हैं. जस्ट अ सेकंड. सो आप चैट के अंदर बेसिकली इट्स अवेलेबल. बाकी लोगों की किसी के मैसेजेस आपको नजर आ रहे हैं? तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट के चैट तक आप कैसे पहुंचती हैं. यस सर. मोर का ऑप्शन है और उस पे चैट का ऑप्शन है. फिर चैट पे जब आप क्लिक करते हैं Yes, तो फिर उसमें स्लाइड्स नजर आनी चाहिए. चलें ठीक है. अगर आप स्लाइड सर स्लाइड शो नहीं हो रही यस सर. मुझे बस भी। इस मतलब चैट शो हो रही है. चैट शो हो रही है बट आई हैव सेंड इट टू एवरीवन सो आई डोंट नो के. एक्सक्यूज मी सर. जी प्लीज. सर जो मोबाइल फोन से ऑनलाइन होते हैं क्लास लेने के लिए वो किसी भी यूआरएल या स्लाइड्स को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन जो लैपटॉप से ऑनलाइन होंगे उनको वो इजीली दिख जाएगा ओके और वो थैंक कोई यू. भी वेबसाइट खोल सकते हैं जी. श्योर ठीक है. थैंक यू फॉर द अपडेट. ठीक है. सो डोंट वरी अबाउट इट. मैं स्लाइड्स वैसे आप लोगों को सेंड कर दूंगा. डोंट वरी. Okay. So let me share my email address with you guys so that आप मेरे ख्याल में ग्रुप्स में मैंने भेजा हुआ है. मैं दोबारा से आपको जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं सब मैं दोबारा से भेज दूंगा. आपको मिल जाएंगे. डोंट वरी. अच्छा अब देखें ये जो है मतलब ये प्रोजेक्ट मैंने एक खोला हुआ है. कोई एक रैंडम प्रोजेक्ट है, कुछ स्टूडेंट्स ने बनाया था. और लेट मी सी इफ वी हैव सम अदर बोर्ड्स. प्लीज अपने इसको ऑफ कर दें माइक्स को. इट्स वेरी डिस्टर्बिंग. ओके सो मेरा कुछ टाइम मतलब ये लोगों को म्यूट करने में भी ज़ाया हो रहा है. तो प्लीज़ आप अपने आप को खुद म्यूट करके रखें जब तक आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे.
मैं अनफॉर्चुनेटली रिमूव करूंगा ऐसे पार्टिसिपेंट्स को जो अभी मजीद ख्याल नहीं रखते इस चीज़ का, ठीक है। सो एक को मैंने रिमूव कर दिया है शायद, बिकॉज इट्स वेरी अनोइंग। बाकी पार्टिसिपेंट्स का आप ख्याल रखें। सो हम सब का टाइम जो है ना इसमें ज़ाहिरी बात है फिर वेस्ट होता है। ओके, सो इफ़ यू सी दिस, हमारे पास टू डू की एक लिस्ट बनी हुई है, देन वी हैव लाइक what we are doing right now, and then we have another section get done. अब यहाँ पे देखें, यहाँ से मैं कार्ड्स को ऐसे दूसरे उस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से इफ मैं इसको वापस लाना चाहूँ मैं यहाँ पे ला सकता हूँ, ठीक है। सो अब किसी भी तरीके से आप ये बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो ये वाला ट्रेलो बोर्ड है इसमें हमने 3 वो बनाए हुए, टू डू, देन we are currently doing on something, and if we have completed something, but इनकी डिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है कि आपने ऐसी ही बनानी है। आप इनके डिस्क्रिप्शन को किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी के इसी तरह से आप बनाएं। ये कोई एक ट्रेलो बोर्ड मतलब मे बी बना था, कुछ स्टूडेंट्स ने बनाया था काफ़ी अर्सा पहले। वंस अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग कि मैं ये कहूँ कि इट्स लाइक परफेक्ट और समथिंग। इट्स जस्ट अ ट्रेलो बोर्ड जो कि मतलब एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। और बेसिकली आपने क्या करना है कि आपने इसी तरह का ट्रेलो बोर्ड बनाना है, बिकॉज वन ऑफ द थिंग इज कि आपने अब ज़ाहिर बात है कि इंटरेक्ट भी करना है बाकी अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ, एंड यू कैन नॉट हैव लाइक एवरीथिंग ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप आपको बेशक कुछ फंक्शनैलिटी वो दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। आई मीन यू कैन हैव वॉइस नोट्स, वी हैव लाइक फाइल्स दैट वी कैन शेयर एंड सो ऑन, बट ऑफ कोर्स अगर एक शेयर डॉक्यूमेंट है उस पर आपने काम करना है, देन you will have to go to something like cloud based solution, या आप कोई गूगल डॉक बनाएंगे। लेकिन गूगल डॉक के अंदर ऑफ कोर्स मतलब ये इस तरह के फीचर्स नहीं है कि आप उसमें मल्टीपल टैब्स बनाते हैं, कौन से टास्क कंप्लीट हो गए हैं, कौन से आप काम कर रहे हैं किन पे, और किस पे किस बंदे को असाइन करना है। अब देखें इस टास्क के अंदर मल्टीपल लोग एडेड हैं। सो बेसिकली ये वो स्टूडेंट्स हैं जब व्हेन आई वाज टीचिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स, सो दे हैड डिफरेंट teams, they developed different teams and they added me in every team, so that was basically sort of a requirement of the course. So इस वजह से मतलब ये इन सब के अंदर मतलब you can see me added as well. So let's see, अब ये वाला ये हमारे ब्यूटम्स के स्टूडेंट्स ने कुछ बनाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने डाटा गैदरिंग, मीटिंग्स, FIP1 प्रेजेंटेशन, इस टाइप की कुछ वो चीज़ें बनाई हुई हैं। सो कोई और आपको ट्रेलो बोर्ड मैं देखता हूँ जो आपके लिए मे बी ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी हो। अब ये वाला एम्प्टी पड़ा हुआ है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। Let's see what we have. Programs to create or programs to make, so they have multiple cards, ठीक है। सो इनका नेम वंस अगेन मतलब चेंज हो सकता है, बट वंस अगेन उन्होंने बस एक ही लिस्ट बना दी और कोई ख़ास इस पर भी काम नहीं किया। तो आप मतलब जब बनाएंगे ना, आप देखें क्रिएट अनदर लिस्ट अगर मैं करता हूँ, यहाँ पे तो प्रोग्राम्स टू मेक है, इसका नाम बेसिकली कुछ और होना चाहिए था। So I was trying to see if I can edit this maybe. Yes. User stories मैं इस पे लिख लेता हूँ, या मैं इसको कह देता हूँ प्रोडक्ट बैकलॉग, और फिर मैं इसे कहता हूँ लीज बैकलॉग, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर मेरे कोई भी यूज़र स्टोरीज हैं, अब मैं इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, मुख्तलिफ उसमें लेके जा सकता हूँ, ठीक है। अब देखें लेट्स सपोज रिलीज बैकलॉग में आपने क्या क्या सिलेक्ट करना है, लेट्स सपोज मैं 2 चीज़ें सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली ये काम करी होती हैं चीज़ें। ओके सर। ओके, सो अब देखें आप कोई भी इनको नाम ले सकते हैं, लिस्ट्स का कोई भी आप वो कर सकते हैं। सो इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। आपने कोई आई मीन ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट गाइडलाइंस नहीं है। देयर आर सम एग्जांपल्स अवेलेबल ऑन द यूट्यूब जो कि आप रेफर कर सकते हैं। आप लिखें ट्रेलो डेमोन्स्ट्रेशन
और आपको बहुत सारी मतलब वो मिल जाएंगी। उसमें एक मतलब एग्जांपल जो है जो अक्सर मैं स्टूडेंट से शेयर करता हूँ, उसमें इट्स अबाउट a studio which are looking for different artists and they have like different stages के पहले वो artists को interview करेंगे, फिर उनके काम को evaluate करेंगे, then they will decide whether they are going to choose those artists for a certain project or not। तो उन्होंने बस अपनी फिर वो बनाई हुई है। जैसे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट बैकलॉग और रिलीज बैकलॉग लिख दिया, तो आप मतलब कुछ भी लिख सकते हैं इस पे, ठीक है। सो आप लोगों का पहला टास्क बेसिकली क्या है, आज मैं आपको दे रहा हूँ। आपने टीम वाइज ट्रेलो बोर्ड्स अपने डिज़ाइन करने हैं। आप इसमें लोगों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इनवाइट का देखें ऑप्शन है, यहाँ पे आप ईमेल लिखेंगे, ठीक है। ईमेल लिखेंगे तो आप आई मीन यू मस्ट नो देयर ईमेल एड्रेस ऑफ कोर्स, और फिर जो ही आप उनको इनवाइट करेंगे तो आपके ट्रेलो बोर्ड के अंदर वो ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। और जो भी आप देखें चेंजेस कर रहे हैं, अगर ये चारों लोग, अब देखें ये कौन कौन लोग हैं, जैकब, देन वी हैव एरन एंड वी हैव सैम। अब ये तीनों लोग मतलब एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे एंड दे ऑफ कोर्स एडेड मी एज वेल। सो if they log in right now they will be able to see all these changes right now। ये रियल टाइम पे मतलब आप सबको नजर आना शुरू हो जाएंगी। और जहाँ पे हम कार्ड्स की बात करते हैं, कार्ड्स को जब आप एडिट करते हैं, आप देखें यू कैन चेंज मेंबर्स, यू कैन मूव, यू कैन कॉपी, यू कैन चेंज देयर ड्यू डेट। लेट्स सपोज अगर आपने कोई दी हुई है, यू कैन आर्काइव दिस। और इसमें और काफ़ी सारी मतलब आप इंफॉर्मेशन यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं कार्ड्स के अंदर, ठीक है। सो इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप इन पे एक दफ़ा काम करना स्टार्ट करेंगे देन यू विल रियलाइज के कितना ये एक मतलब पावरफुल चीज़ है। और देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि दे हैव असाइन डिफरेंट पीपल टू दिस एज वेल, ठीक है। अब मैं हो सकता है कि मैं लाइक मेंबर्स इसमें चेंज कर दूं और मैं कोई और चीज़ ऐड कर दूं इन पे, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ठीक है। बाय द वे ये थोड़े सरप्राइज हो जाएंगे बिकॉज 2016 के बाद इसको मैंने चेंज करना स्टार्ट कर दिया एंड मे बी दे गेट नोटिफिकेशंस वाया ईमेल्स के, पता नहीं क्या होना शुरू हो गया। सो एनीवेज, तो आप लोग मतलब इसको इस तरह से देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक कार्ड के ऊपर एक ही लाइक पर्सन आप असाइन करें, आप किसी कार्ड के ऊपर मल्टीपल लोगों को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो चेंज मेंबर्स अगर मैं करता हूं तो मैं इसमें लाइक एक और मेंबर को देखें ऐड कर दिया और मैंने सेव कर दिया। अब इस टास्क के ऊपर मैंने 2 लोगों को ऐड कर दिया, ठीक है ना। सो आप देखें पहले सब टास्क के ऊपर एक एक बंदा काम कर रहा था, सही है। सो आप इस तरह से ये चीज़ें कर सकते हैं। और फिर इनमें और भी फीचर्स हैं, मतलब एट सम पॉइंट यू कैन इवन ऐड अटैचमेंट्स। वो भी मतलब आप देखिएगा, आपको खुद मतलब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा। So let's suppose once again we would go back to those user stories, for instance let me see वो कौन सी slide थी। जस्ट अ सेकेंड, मैं अब शेयरिंग की सेटिंग्स थोड़ी चेंज कर दूं, मैं वापस आपको दिखाना चाह रहा हूँ स्लाइड। ओके अब देखिए मतलब आप क्या कर सकते हैं कि यूजर स्टोरीज को ऐड कर सकते हैं, फिर प्रोडक्ट बैकलॉग बना सकते हैं एंड ऐड एज मेनी फीचर्स एज पॉसिबल। थिंक अबाउट योर प्रोजेक्ट, थिंक अबाउट, अच्छा जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं दे डोंट हैव टू वरी कि अब उन्होंने शायद कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं किया तो वो कैसे बनाएंगे। आप कोई भी हाइपोथेटिकल एक प्रोजेक्ट सोच लें, इवन मतलब आप हो सकता है अपने फाइनल ईयर के बारे में अभी से प्लान करना स्टार्ट कर दें, एक प्रोजेक्ट के बारे में सोच लें कोई भी और सोचें कि लेट्स सपोज उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए एंड एवरी फीचर विल बी अ यूजर स्टोरी, आप उनको ऐड करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस कि आप आज से ही इस पे काम करना शुरू कर देंगे एंड देन ऑफ कोर्स यू विल डेवलप अ मैकेनिज्म कि ऑफ कोर्स आई विल गिव अ चांस टू यू गाइस कि आप लोग बताएं कि आप लोगों ने क्या किया, ठीक है। आपने सर चलो जी जी प्लीज बताएं। सर हम आपको भी ऐड कर दे इसमें? जी जी बिल्कुल ऐड करें, मैं आपको ईमेल एड्रेस बता दूंगा, ठीक है। रादर आपने देख लिया होगा, बल्कि लेट मी पुट माय ईमेल एड्रेस एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड सो दैट एवरीवन नोज। ओके सर, थैंक यू।
So it's dr.nadeem@ieee.org. ठीक है, अगर आप अभी नोट करना चाहें अभी बेशक कर लें, वैसे इजी है, मतलब याद रहेगा, हो सकता है आपको dr.nadeem@ieee.org। ठीक है, सो इस तरह से आप यूजर स्टोरीज बना के आप एक प्रोडक्ट बैकलॉग बनाएंगे, और फिर आप मैं मतलब ये भी देखना चाहता हूँ कि कौन से फीचर्स आप सिलेक्ट करते हैं रिलीज बैकलॉग के लिए, और वो रैंडम सिलेक्शन नहीं करनी है आपने, उसका आपको रीजन पता होना चाहिए। लेट्स सपोज आप कभी, अगर मैं ये लिखूं कि मैं जो है वो साइन अप वाला फीचर मैंने नहीं सेलेक्ट किया, या रजिस्टर करने वाला फीचर मैंने सेलेक्ट नहीं किया और मैंने लॉग इन वाला कर लिया, तो दैट विल बी सॉर्ट ऑफ नॉट अ गुड डिसीजन, कि मैं जब साइन अप नहीं कर सकता तो मैं लॉग इन कैसे करूंगा। ठीक है, या अगर आपने लेट्स सपोज कोई बेसिक से फीचर थे वो आपने छोड़ दिए और आप एक बहुत एडवांस फीचर की तरफ चले गए कि यूजर अपने प्रोफाइल को जाके एडिट कैसे कर रहे होंगे, या अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे चेंज कर रहे होंगे, सो यू कैन लाइक लीव दोज यूजर स्टोरीज टू लेटर रिलीजेस। पहले रिलीज में आपने देखना होता है कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर दैट कस्टमर वांट टू सी इन देयर ऐप, राइट? सो यू हैव टू फोकस ऑन दोज फीचर्स। सो प्रोडक्ट बैकलॉग से जब आप रिलीज बैकलॉग पे जाएंगे, सो वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग हमारी डिस्कशन होगी। मैं सबको चांस दूंगा वन बाय वन, या मैं ओपन कर लूंगा उनकी यहाँ पे ट्रेलो की जो भी टीम होगी उसमें मैं ओपन कर लूंगा, फिर आप लोग खुद एक्सप्लेन करते जाएं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आई गिव अ चांस टू यू गाइस कि आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर करके एक्सप्लेन करें। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट दैट आई वांटेड टू डिस्कस। ऑफ कोर्स जो हमारे फ्यूचर के सॉर्ट ऑफ हमारा वे फॉरवर्ड है वो इस तरह से है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टूल्स और उनको यूज़ कैसे करना है। ऑफ कोर्स सम ऑफ द टूल्स हैव अ लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व का मतलब ये होता है कि लर्निंग में उनमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट जैसे ये वाला टूल है इसमें कोई लर्निंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप इसमें लाइक 1-2 घंटे भी लगाएं, यू विल अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ इट्स फीचर्स, आई मीन विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट ऑफ कोर्स देर आर सम टूल्स जिनकी कॉन्फ़िगरेशन में, जिनको सेटअप करने में मैं ऑफ कोर्स हेल्प कर रहा हूँ, मैं डेमोन्स्ट्रेट आपको कर रहा हूँ, एंड आई विल प्रोवाइड यू प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन सो दैट यू कैन ऑल्सो सेट इट अप एट योर एंड। सो वंस अगेन राइट नाउ मतलब आई हैवंट टोल्ड यू कि कौन कौन से टूल्स होंगे, कैसे यूज़ होंगे। डोंट वरी अबाउट इट, इट वाज वेरी फर्स्ट सेशन, और मैं बेसिकली आपको सिर्फ ऑन बोर्ड लेना चाह रहा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आजकल अगर लेटेस्ट पर्सपेक्टिव में बात की जाए, दुनिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैसे हो रही है, ऑटोमेशन को कैसे अचीव किया जा रहा है। जो CI/CD की पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया, उसमें मैंने डिफरेंट आपको टास्क बताया कि किस तरह से ऑटोमेशन अचीव की जा रही होती है। लेट मी स्टॉप शेयरिंग। ऑलराइट, सो वंस अगेन मतलब पर्पस हमारा ये था कि हम डिफरेंट CI/CD के फीचर्स को देखें, उसके स्टेप्स को देखें, और उसमें देखें कि किस तरीके से हम ऑटोमेशन अचीव करते हैं। मैंने आपको टेस्टिंग की एग्जांपल दी, मैंने आपको ऑटोमेटेड कंपाइलेशन और बिल्ड प्रोसेस की आपको एग्जांपल दी, मैंने आपको ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने की एग्जांपल दी। जैसे हमने ऐप स्टोर की एग्जांपल दी कि ऐप स्टोर के अंदर ऐसा नहीं होता कि फेसबुक या गूगल या कोई और ऐप्स की आप बात करें कि वो मैनुअली जाके अपलोड करें अपनी ऐप को ऐप स्टोर के ऊपर, रादर दे हैव continuous integration and continuous development pipeline जिसके थ्रू ये सारा काम with the help of few clicks हो जाता है। ठीक है, so I think that's pretty much it. So if you have any questions please go ahead, आप questions पूछें। और मैं ये स्लाइड्स ऑफ कोर्स मैं इन अ वाइल मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में ये सारी चीज़ें शेयर करने लगा हूँ आपसे। सही है, तो आप कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन कंक्लूड कर देंगे। सर वो जो आपने यूज की थी वो क्या है, CIA? ओके, CI/CD। CI का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। जी, CI स्टैंड्स फॉर कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन और CD मीन्स कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट। राइट नाउ डोंट वरी अबाउट इट। मैंने मतलब आपसे इसको मैंने डेफिनेशन भी नहीं बताई सही तरीके से आपको, डोंट वरी अबाउट इट। बस मैंने एक आपको पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट दिया, मैंने एक बहुत ही लेमैन एग्जांपल एक यूज़ की। जैसे एक ऑर्डरिंग स्टेशन होता है, तो एक बंदा लाइक ऑर्डर ले रहा होता है, दूसरा बंदा वो फूड जो है कंटेनर्स के अंदर डाल रहा होता है, तीसरा बंदा मे बी उनको पैक कर रहा होता है, चौथा बंदा आपसे पैसे ले रहा होता है या कैलकुलेट कर रहा होता है, और पांचवा बंदा जो है वो जो भी कैलकुलेटेड टोटल होता है वो आपसे पैसे रिसीव करके आपको फूड दे देता है। सो इट्स वंस अगेन इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ पाइपलाइन जिसमें
हर स्टेज एक फंक्शन परफॉर्म कर रही है और वो अपने आउटपुट को आगे भेज रही है, सो इन ऑर्डर टू अचीव एफिशिएंसी। तो आजकल डेवलपमेंट में भी ये समझ लें कि ये एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि सोर्स कोड डेवलप हो रहा होता है, फिर वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है फॉर स्टोरेज टू आवर रिपोजिटरी। फिर उसके बाद उस पर कंपाइलेशन का स्टेप ऐड हो जाता है, कंपाइलेशन के बाद बिल्ड प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है, उसके बाद टेस्टिंग का प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है, टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है। डिप्लॉयमेंट ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली आप जो है वो ऐप स्टोर के अंदर भेजते हैं पहले, बल्कि हो सकता है डिप्लॉयमेंट आप पहले कोई और अपने इन्वायरमेंट बनाया हुआ है जिसमें आप देखना चाह रहे हो ऐप को, और फिर आप रियल इन्वायरमेंट के अंदर अपने एप्लीकेशन को सेंड कर सकते हैं। सो दीज आर दी स्टेजेस ऑफ टिपिकल स्टेजेस ऑफ अ कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन पाइपलाइन। ठीक है, सो बट डोंट वरी, हम इनके बारे में मजीद बात करेंगे फ्यूचर लेक्चर्स में। सही है, सो डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चंस? सर कंपाइलेशन का एक दफा एक्सप्लेन कर दे प्लीज। ओके, जैसे आप प्रोग्राम लिखते हैं जावा के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर, और आप उनको कंपाइल करते हैं, कंपाइलेशन का मतलब यहाँ पे भी वही है। ठीक है, कंपाइल और बिल्ट में थोड़ा सा फर्क होगा। Built is like in the perspective of the entire application. Let's suppose if you have 100 different modules or 50 different modules, whether they are working together as a single application or not, अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको कहेंगे it's related to build। लेकिन अगर हम कहेंगे एक स्पेसिफिक मॉड्यूल है जो कि लॉगिन का मॉड्यूल है, क्या वो कंपाइल हो रहा है या उसके अंदर कोई सिंटैक्स एरर है, कोई हो सकता है आपने पैकेज इंक्लूड ना किया हो, कहीं पे हो सकता है आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर ऐड ना किया हो, तो ये जो है कंपाइलेशन कहलाती है। कंपाइलेशन जब सक्सेसफुल हो जाती है देन वी मूव टू द बिल्ड प्रोसेस। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ऑलराइट, सो डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चंस? सर ये ट्रेलो के अंदर जो है मैंने अभी से ओपन किया है ना, तो मैंने जो है गूगल अकाउंट के साथ साइन अप किए, तो मतलब अब मैं जब बार बार आती हूँ ना तो ये जो है गूगल से हो रही है, गूगल अकाउंट से। ठीक है, इट्स फाइन, मतलब आपका जीमेल के अकाउंट से वो लिंक हो गया होगा ना। मतलब इधर यू कैन क्रिएट योर अकाउंट मैनुअली और यू कैन यूज योर जीमेल ऑथेंटिकेशन टू लॉग इन टू योर ट्रेलो। इट्स फाइन, नथिंग, नो डिफरेंस, मतलब कोई इतना मसला नहीं है। सिर्फ आपने ऑथेंटिकेशन के डिफरेंट मैकेनिज्म्स होते हैं। यू कैन क्रिएट योर मैनुअल अकाउंट, योर अकाउंट मैनुअली, और यू कैन यूज योर गूगल अकाउंट फॉर ऑथेंटिकेटिंग टू ट्रेलो। सो दोनों में फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फीचर्स में फर्क नहीं होगा। सही किया आपने। सर आई मीन मैं लॉगिन हो जाती हूँ ना तो ये दोबारा से वही आती है, वेलकम टू ट्रेलो, और वो कार्ड बनाना जो उसकी होती है ना वो आती है। तो डेफिनेटली आपने कार्ड्स ही इसमें डिज़ाइन करने हैं, तो आप इस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। जैसे मैंने आपको कहा कि यू मे वॉच सम ट्यूटोरियल वीडियोस, आप देखें उसको, इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरा नहीं ख्याल कि प्रॉब्लम आएगा कोई। आपको थोड़ा सा टाइम इसमें लगाएंगे आप तो फिर पता चल जाएगा आपको। even if even then if you are not able to create a card, or maybe you are stuck at some point, so what you can do is you can create an account manually। मतलब आप गूगल से, अगर आपको लगता है गूगल से लिंक करने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि गूगल से लिंक करने में कोई भी प्रॉब्लम होगा, बिकॉज वो सारी डिटेल के आप यूज़र नेम सेलेक्ट करें, पासवर्ड सेलेक्ट करें, नेम बताएं अपना, वो सारी डिटेल से आप बच जाते हैं। आप डायरेक्टली गूगल से ऑथेंटिकेट होकर एंटर हो जाते हैं। प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। आप थोड़ा सा इसको देखिएगा, अगर स्टिल प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकती हैं या ईमेल कर सकती हैं। ऑलराइट, सो डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चंस एट ऑल? सर FIP का फुल फॉर्म क्या है? फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, FIP। सो Okay, समटाइम्स sir. हम Sir, सीनियर डिज़ाइन प्रोजेक्ट भी कहते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ Okay, अब्रॉड स्पेशली ये टर्म यूज़ करती हैं, बट पाकिस्तान के अंदर हम मोस्टली FYP कहते हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। sir, will you share the recording with us or not? Yeah, sure, I will. जैसे Yeah, sir, it's so beneficial, ना? नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो आप मेरे ख्याल में 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट है? Yes, sir. जी, क्योंकि बाकी जो 7th सेमेस्टर और MCS के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो दूसरा सब्जेक्ट में भी दे आर आल्सो माय स्टूडेंट्स, सो उनसे मैं पहले शेयर कर चुका हूँ। पहला सेशन हमारा जो हुआ था ना FIP का, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का। सो Yes. डोंट वरी, इसकी रिकॉर्डिंग अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे एक लिंक मिल जाएगा आपको। सही है, Okay, sir. Thank you, sir. नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, सो डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चंस एट ऑल? Okay, thank you very much. So inshallah I'll be available on via my email. You can send me an email,
or you can ask the questions through WhatsApp groups. And I'm going to share these slides as well in a while. और ये लेक्चर के लिंक्स यूं ही अपलोड हो जाती है because it takes time. थोड़ा प्रोसेस होने में टाइम लगता है, बट हो जाएंगी, सारी चीजें शेयर हो जाएंगी. Sir, excuse me. जी प्लीज. Our class will be on Saturday. No, this time as you might have realized that basically I'm traveling, so मेरे पास वर्किंग डेज के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम था, चैलेंजिंग था मेरे लिए टाइम निकालना, इसलिए मैं सैटरडे को ऑप्ट किया. बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हमारे जो 9 to 5 वर्किंग आवर्स होते हैं उसी के अंदर आपकी क्लासेस. आई एम सॉरी एंड आई अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू कि आपको मैंने वीकेंड पे तंग किया, बट थैंक यू वेरी मच कि काफी सारे स्टूडेंट्स, आई मीन 44 से ज्यादा स्टूडेंट्स एक टाइम पे कनेक्टेड थे. नो सर. जी थैंक यू वेरी मच. Thank you, सर sir. ये हमारा जी प्लीज बताएं. FYP का क्लास कब होगा? ऑलराइट, सो इस वीक के FIP की क्लास हो सकता है वंस अगेन मुझे मतलब वीकेंड पे ही, मे बी मैं कल आप लोगों को तकलीफ दूं अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल हुआ. वंस अगेन आई विल सेंड द मैसेज इन द ग्रुप. अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल हुआ तो हम कर लेंगे, अदरवाइज फिर हम इसे इस वीक क्या तो मिस करनी पड़ेगी. सर जी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? यस सर. सर अगर हमें कोई भी चीज समझ में ना आए तो क्या हम आपसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप या ईमेल वगैरह पे? श्योर बिल्कुल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. और ओके सर, थैंक यू सर. जी नो प्रॉब्लम, आप कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स द रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल एज वेल. आपको अगर कोई लेक्चर में से कोई चीज समझ नहीं आई तो आप उसको भी देख सकते हैं. जी मैं ओके समरीना, आप पूछना चाह रही हैं? यस सर. सर हमारी SE2 की क्लास कब दोबारा होगी? रिपीट करें कि SE2 की क्लास कब होगी? ओके, सो आप कौन सी क्लास की स्टूडेंट हैं? सर 5th सेमेस्टर. 5th सेमेस्टर? 5th, यस सर. अच्छा ठीक है. सो डोंट वरी, मैं इंशाल्लाह कोई आप लोगों से कंसल्ट करके आपका टाइम टेबल देके हम कोई ऐसे आवर्स सेलेक्ट कर लेंगे. और मैं कभी भी मतलब आपको ऐसा नहीं होगा 5 मिनट्स के नोटिस पे आपको बताऊं कि बस अभी क्लास शुरू होने वाली है. डोंट वरी अबाउट दैट. आपको एटलीस्ट एक दिन पहले मतलब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा थ्रू व्हाट्सएप. सो डोंट वरी अबाउट इट, ऐसा नहीं होगा. और जस्ट इन केस मतलब अगर कभी हुआ भी तो हो सकता है मैं कुछ घंटे पहले आपको बता दूं कि चलें आज हमारी क्लास 4 घंटे के बाद है, 5 घंटे के बाद है. बट ऐसा कोई इमरजेंसी में क्लासेस में वैसे नहीं करता, मतलब कि आई नो कि स्टूडेंट्स इसमें सारी बातें तंग होते हैं कि आपका ऑलरेडी प्लान होते हैं और क्लासेस हो रही होती हैं, एंड डेफिनेटली इट्स फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू. सो डोंट वरी, इंशाल्लाह ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको. जी थैंक यू सो मच सर. और कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का? चलें. यस सर मी. जी बताएं. सर ये जो आपने ट्रेलो को बताया ना, तो सर आपने कहा फाइनल ईयर के लिए हमें हेल्प आउट कर सकता है. बिल्कुल. तो सर इसमें इंडिविजुअली काम किया जा सकता है? इंडिविजुअली काम करना मतलब सिर्फ ये है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे, बट प्रोजेक्ट बिकॉज आई वुड सजेस्ट, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. देखें मेरे पास हर दफ़ा इस तरह के स्टूडेंट्स ज़रूर आते हैं, वो कहते हैं कि हमने अपना प्रोजेक्ट अलग से बनाना है. सो मैं अब आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, इसको आपने ज़रा गौर से सुनना है कि जब आप जॉब के लिए जाएंगे, लेट्स सपोज आपकी किसी बैंक में जॉब होती है, किसी टेलीकॉम कंपनी में जॉब होती है, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब होती है, और वहाँ पे आप ये कहते हैं जी ये टीम मुझे पसंद नहीं है जिनके अंदर मैंने काम करना है, बट मैं ये प्रोजेक्ट अकेले से करूँगी. तो आपको क्या लगता है वो आपको क्या कहेंगे? दे आर नॉट गोइंग टू लाइक अलाउ यू, दे आर नॉट गोइंग टू परमिट यू कि आप सारी टीम को साइड पे करें और अपना प्रोजेक्ट आप अलग से करें. आप हो सकता है कि 1 साल वाला काम जो है वो आपको 5 साल लग जाए, क्योंकि आपकी टीम में हो सकता है 5 लोग हों, 10 लोग हों. सो अब देखें, एक्सक्यूज मी, आप अपना माइक प्लीज अगर साइलेंट कर दें, म्यूट कर दें, सो दैट आपको मेरा आंसर सही तरीके से पता चले. सो अब देखें कि एक ऐसा इंजीनियर, ऐसी साइंटिस्ट जो कि ग्रुप मेंबर्स को ऑन बोर्ड लेके चलें, ऑल्दो एवरी टीम मेंबर इज नॉट आइडियल, ये मैं पहले से आपको बता रहा हूँ. आपको चैलेंजेस आते हैं कम्युनिकेशन के, कमिटमेंट के, टाइमलाइंस को मीट ना करने के. आप एक मीटिंग कॉल करते हैं और आप वेट कर रहे होते हैं और कोई नहीं आता मीटिंग में.
इस तरह से अगर आप ऑन कैंपस मिल रहे होते हैं उसमें भी ये चैलेंजेस आते हैं। आप कोई टास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आप एक डेडलाइन डिसाइड करते हैं, 5 में से 2 लोग करते हैं, 3 लोग नहीं करते। तो आप ये देखें कि दो सिनेरियोज हैं। एक में एक स्टूडेंट डिसाइड करता है कि मैंने किसी के साथ काम नहीं करना और मैं अपना प्रोजेक्ट अकेले करूँगी, वर्सेस एक स्टूडेंट है जो कि डिस्पाइट ऑल दीज प्रॉब्लम्स अपनी टीम को इंटैक्ट लेके चलते हैं, आगे वो चलती है, वो ग्रुप लीडर है लेट्स सपोज, और वो अपना प्रोजेक्ट उनके साथ कंप्लीट करती हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे मतलब किसने ज़्यादा लर्निंग की? हो सकता है टेक्निकली आप कह लें ठीक है, जो स्टूडेंट जिसने अकेले से प्रोजेक्ट बनाया उसने टेक्निकली चीज़ें ज़्यादा सीख ली होंगी, डॉक्यूमेंटेशन भी खुद की होगी, हर चीज़ सर्चिंग भी खुद की होगी, डेवलपमेंट भी खुद की होगी, हर चीज़ की इंस्टॉलेशन की होगी। बट बहुत सारे ऐसे स्टेप थे जो कि उन्होंने रास्ते में मतलब वो छोड़ दिए। मतलब एक टीम के साथ कैसे काम करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें मतलब वो सीखने का मौका उन्होंने गंवा दिया। और फ्यूचर में जब वो किसी जॉब के लिए जाएंगी वो सारे स्किल्स उनमें लैकिंग होंगे। आपको किसी टीम में ऐड किया जाएगा, आप आदी ही नहीं होंगे कि अगर कोई काम टाइम पे नहीं करा तो उनके साथ कैसे हैंडल करना है। मे बी आपको सम टाइम उस पर बहुत गुस्सा आ जाए कि आपने टाइम पे काम क्यों नहीं किया, या आपने एक मेंबर आपकी फ्रीक्वेंसी उनके साथ मैच नहीं होती, बट स्टिल आपने उनके साथ मिल के काम करना होता है, उनके साथ मिल के डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने होते हैं। सो इट्स बेटर कि आप टीम्स में ही काम करें, ठीक है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू, आई स्ट्रांगली एडवाइस यू। और जो कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे आता है, कॉन्फ्लिक्ट रिमूव करने का सबसे पहला काम क्या, सबसे पहला तरीका क्या होता है? कम्युनिकेशन। आप उन लोगों से कम्युनिकेट करें, डोंट टेक इट पर्सनल। हमारे देखें मतलब मैं जिस पोजीशन पे अभी काम कर रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में, आई हैव टू डील विद 7 डिपार्टमेंट्स। और ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एक आइडियल इन्वायरमेंट के अंदर काम करें, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। मेरी बहुत सारी बातों से वो डिसएग्री होते हैं, उनकी कुछ बातों से मैं डिसएग्री होता हूँ, एंड वी कम्युनिकेट, ठीक है। अगर हम कम्युनिकेट ना करें, ऑफ कोर्स हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स और ज़्यादा फिर आई मीन एस्केलेट होते जाते हैं, फिर हम टीम के तौर पर काम ही नहीं कर सकते, ठीक है। सो आपकी सक्सेस मतलब Yes, उसमें sir. होगी कि आप एज अ टीम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, मे बी आप ये पूछना चाह रही थी या नहीं, बट मैंने वैसे ही एक्सप्लेन कर दिया। अब सर मैं ये पूछना चाह रही थी जी कि मैं आ रहा हूँ अगर उसमें। अभी से काम स्टार्ट कर दें तो अभी की बात कर रही हूँ, फाइनल ईयर में तो ऑब्वियसली होगा कोई ना कोई साथ जी टीम जी में। ओके ओके वेरी इस गुड, वक्त बात कर रही हूँ फिफ्थ सेमेस्टर ठीक है। से। इस वक्त भी जी आप ऐसे करें कि अच्छा, मुझे वैसे पता नहीं था कि यू आर फ्रॉम 5th सेमेस्टर और 7th, मैंने इसलिए वो एक एस्पेक्ट एक्सप्लेन कर दिया जो कि नॉर्मली होता है, हर 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 जी बैच जी में ऐसे होता है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप कोई भी टीम सेलेक्ट करें, कोई भी रैंडमली टीम, बिकॉज आपको वो फीचर आप फिर कैसे देखेंगी कि आप मल्टीपल लोगों को ऐड कैसे करते हैं टीम के अंदर, ट्रेलो के मतलब उनको टास्क कैसे असाइन कर रहे होते हैं, वो चीज़ें फिर रह जाएंगी आपसे, ठीक है ना। इसलिए आप कर लें, मतलब ओके सर। 5th सेमेस्टर के लेट्स सपोज अगर 25 स्टूडेंट्स हैं, आप 5 टीम्स बना लें, कोई भी रैंडमली, कोई भी किसी ऑर्डर में, जरूरी नहीं है कि किसी खास ऑर्डर में बना लें। आपने हो सकता है प्रीवियसली कहीं कंबाइंड कोई रिपोर्ट बनाई हो, उसी तरह से उन्हीं उन्हीं ग्रुप्स को फॉलो कर लें, कोई भी बना लें, इट डजंट मैटर। 4 लोगों का बना लें, 3 लोगों का बना लें, 5 लोगों का बना लें, 6-7 लोगों का भी बना सकते हैं, बट नॉट एन FYP ग्रुप। वो फाइनल प्रोजेक्ट ग्रुप नहीं होगा, लेकिन वो ट्रेलो पे तो काम कर सकते हैं। इससे बड़ी टीम भी काम कर सकती है ट्रेलो पे, 10 लोगों की टीम हो सकता है, 20 लोगों की टीम हो, लेकिन फिर आपको जरा सोचना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट क्या है, किस नेचर का है। आपने खुद एक हाइपोथेटिकल एक चीज सोचनी होगी। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट टाइम जब मैंने ये कराई एक एक्टिविटी एक जगह में, आई वाज टीचिंग दिस, और उसमें स्टूडेंट्स ने क्या किया कि दे डिसाइडेड टू डिज़ाइन अ वेबसाइट। आई मीन दे डिसाइडेड टू कम अप विद अ प्रोजेक्ट जो कि डिज़ाइनिंग ऑफ वेबसाइट से रिलेटेड था। सो दे created a lot of boards कि we want to select a template, we want to select some graphic कि front पे कौन सी picture display होगी, and they were creating different like sort of Trello boards, उसके अंदर वो different अपनी pictures को insert करके देख रहे थे कि whether this is fine or not, ये final हुई है कि नहीं हुई, और उस पर उनके comments आ रहे थे and so on. So this was very interesting. और वो जब आप यूज़ करेंगे, अब तो देखें ना, फिजिकल इंटरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। एक तो ये एक और मतलब इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये ट्रेलो के लिए, जो उसका लाइक मेन उसका फायदा है वो आपको अभी ज्यादा, आई मीन इट्स अ बेटर टाइम टू सी ऑल दोस फीचर्स, ठीक है ना। चलें, सो डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। नो सर। ओके,
थैंक यू वेरी मच। सो आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग और ये इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी। सो इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसका स्केड्यूल आप लोगों से शेयर कर लूँगा। और FYP की क्लास अगर हम कल प्लान करते हैं, आई विल आस्क यू गाइज इन द ग्रुप। अगर आप लोग अवेलेबल हुए तो फाइन, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।